السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر اسکول بند ہیں۔ راکل اکیڈمی نے اس وجہ سے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے تاکہ آپ گھروں میں ہی معیاری تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ آپ کے سامنے آپ کی اردو کی کتاب گل لالہ ہے۔ یہ 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے گل لالہ۔ پیارے بچوں، جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں تاکہ اس کام میں برکت ہو۔ تو آج ہم اپنی کتاب کا آغاز حمد، خدا کی شکر گزاری سے کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حمد کے بارے میں بتاؤں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس حمد کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ محمد حسین آزاد 1830 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1910 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد حسین آزاد نے بچوں کے لیے بہت سی عمدہ کتابیں لکھی ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم خدا کی شکر گزاری کے مشکل الفاظ پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو حمد کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حمد، خدا کی شکر گزاری کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے فلیش کارڈز دکھاؤں گی۔ اس کے بعد ہم آگے کام کریں گے۔ تو ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ کا پہلا لفظ ہے عنایت۔ عنایت، عنایت کا معنی ہے مہربانی۔ عنایت اس کا معنی ہے مہربانی۔ نمبر 2 پہ جو لفظ ہے وہ ہے عجب۔ عجب، عجب کا معنی ہے انوکھا۔ عجب اس کا معنی ہے انوکھا۔ ہمارا اگلا لفظ ہے نگاہ۔ نگاہ کا معنی ہے نظر۔ نگاہ کا معنی ہے نظر۔ اگلا لفظ سونگھنے۔ سونگھنے، سونگھنے کا معنی خوشبو محسوس کرنا۔ سونگھنے، خوشبو محسوس کرنا۔ ہمارا اگلا لفظ ہے، یہ آپ کے سامنے یہ فلیش کارڈز ہے، فرصت۔ فرصت، یہ لفظ ہے فرصت۔ فرصت کا معنی ہے فارغ وقت۔ فرصت کا معنی ہے فارغ وقت۔ ہمارا اگلا لفظ ہے صدا۔ صدا، صدا کا معنی ہے ہمیشہ۔ صدا، ہمیشہ۔ اگلے فلیش کارڈ پہ جو لفظ ہے وہ ہے لذت۔ لذت، لذت کا معنی ہے ذائقہ۔ لذت کا معنی ہے ذائقہ۔ اگلا لفظ ہے نعمتیں۔ نعمتیں، نعمتیں اس کا معنی مال و دولت، لذیذ چیزیں۔ نعمتیں اس کا معنی ہے مال و دولت، لذیذ چیزیں۔ اگلا لفظ ہے تکلیف۔ تکلیف، تکلیف کا معنی ہے تنگی، دشواری، دکھ۔ تکلیف اس کا معنی ہے تنگی، دشواری، دکھ۔ اگلا لفظ ہے گرمیاں۔ گرمیاں،
गर्मी की जमा, इसका मानी है गर्मी की जमा। गर्मी एक मौसम है, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, तो यहाँ पे लफ्ज़ हमारे पास जो है वो है गर्मियाँ। इसका मानी है गर्मी की जमा। अगला लफ्ज़ है अनाज। अनाज, अनाज का मानी है गल्ला, दाना। अनाज का मानी है गल्ला, दाना। अगला जो लफ्ज़ है वो है कामो। कामो, कामो, इसका जो मानी है वो है काम की जमा। काम की जमा। हमारे पास अगला लफ्ज़ है समा। समा का मानी है मंज़र। समा, इसका मानी मंज़र। हमारे पास अगला लफ्ज़ है मौसम। मौसम, मौसम का मानी है रुत। मौसम का मानी है रुत। जी तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज। उम्मीद है आपको जो है इनके मानी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम अपना अगला काम शुरू करेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी उर्दू की कॉपियाँ निकालनी हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने कॉपी निकालूंगी अभी उर्दू की। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है ना उर्दू की कॉपी। ये हम अपनी कॉपी निकालेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने डे एंड डेट लगानी है। यहाँ पर आप लगाएंगे डे एंड डेट, जैसे हम पहले लगाया करते थे, आपको याद है ना क्लास में। यहाँ पर ऊपर वाली लाइन पे आप लगाएंगे डे एंड डेट। डे एंड डेट के सामने हम लोग लिखेंगे जमात का काम। डे एंड डेट के बिल्कुल सामने हम लिखेंगे जमात का काम। इससे अगली लाइन पे आप लिखेंगे यूनिट नंबर। अब यूनिट नंबर जो है वो है हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर के सामने उसी लाइन पे हम लिखेंगे सफ़ा नंबर। सफ़ा नंबर 2 ता 5। सफ़ा नंबर हमारा है 2 ता 5। इससे अगली लाइन पर हम अपनी हम्द, उसका नाम लिखेंगे खुदा की शुक्रगुजारी। इसके नीचे हम लिखेंगे मुश्किल अल्फाज। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक स्केल लेना है और स्केल की मदद से आपने यहाँ पर 2 लाइनें लगानी। 2 लाइनें आपने बराबर ऐसे लगा देनी है। इस तरह आपकी ये कॉपी पे 3 कॉलम बन जाएंगे। समझ आ रही है ना आपको? ये आपके सामने है कॉपी। यहाँ आप स्केल की मदद से 2 लाइनें लगाएंगे। ये आपके बन जाएंगे 3 कॉलम। एक कॉलम में आप अभी लिखेंगे जैसे हम क्लास में काम करते थे। उसके बाद अगले जो 2 कॉलम हैं वो आपकी लिखाई की मश्क के लिए हैं। आपने वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, बार बार उन 2 कॉलम में दोबारा आपने लिखना है। तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का काम। हमारे पास सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है इनायत। इनायत, मुश्किल अल्फाज का हमारा नंबर 1 पे जो लफ्ज़ है वो है इनायत। इनायत का मानी है मेहरबानी। प्यारे बच्चों, ये अल्फाज मैंने अभी आपको फ्लैश कार्ड्स पे दिखाए थे ना, और साथ ही मैंने उनके मानी भी आपको बताए थे। तो अब मैं दोबारा आपको ये अल्फाज कॉपी पे ये आपको लिखवाने लगी हूँ और साथ ही दोबारा से आपको इनके मानी भी बताने लगी हूँ। तो देखिए, नंबर 1 पे जो लफ्ज़ है वो है इनायत। इनायत का मानी है मेहरबानी। नंबर 2 पे जो लफ्ज़ है वो है अजब। अजब, अजब का मानी है अनोखा। नंबर 3 पे जो लफ्ज़ है वो है निगाह। निगाह, निगाह का मानी है नज़र। निगाह का मानी है नज़र। नंबर 4 पे जो लफ्ज़ है वो है सूंघने।
सूंघने, सूंघने का मानी है खुशबू महसूस करना, सूंघने खुशबू महसूस करना। नंबर 5 पे जो लफ्ज़ है वो है फुर्सत, फुर्सत, फुर्सत का मानी है फारिग वक्त, फुर्सत का मानी है फारिग वक्त। नंबर 6 पे जो लफ्ज़ है वो है सदा, सदा, सदा का मानी है हमेशा, सदा हमेशा। जी आगे देखें, नंबर 7 पे जो लफ्ज़ है वो है लज्जत, लज्जत, लज्जत का मानी है जायका, लज्जत का मानी है जायका। नंबर 8 पे जो लफ्ज़ है वो है नेमतें, नेमतें, नेमतें मालो दौलत लजीज चीज़ें, नेमतें का मानी मालो दौलत लजीज चीज़ें। नंबर 9 पे जो लफ्ज़ है वो है तकलीफ़, तकलीफ़, तकलीफ़ का मानी है तंगी दुश्वारी, तकलीफ़ का मानी तंगी दुश्वारी। नंबर 10 पे लफ्ज़ है गर्मियाँ, जी गर्मियाँ, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, इसका मानी है गर्मी की जमा, गर्मी एक मौसम का नाम है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है गर्मियाँ, तो इसका मानी हुआ गर्मी की जमा। अगला लफ्ज़ है नंबर 11 पे मेहनत, मेहनत, मेहनत का मानी है मुशक्क़त मज़दूरी। अगला लफ्ज़ है अनाज, नंबर 12 पे देखें, लफ्ज़ है अनाज, अनाज का मानी है गल्ला दाना। नंबर 13 पे लफ्ज़ है कामों, कामों, इसका मानी है काम की जमा। नंबर 14 पे लफ्ज़ है समा, समा, समा का मानी है मंज़र। नंबर 15 पे जो लफ्ज़ है मौसम, मौसम, ये लफ्ज़ है मौसम और ये हमारा आखिरी लफ्ज़ है मुश्किल अल्फाज का। मौसम इसका मानी है रुत, मौसम इसका मानी रुत। जी तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे और आपने बहुत ही ख्याल से काम करना है, नीट काम करना है और अच्छा सा लिखने की कोशिश करनी है। अब प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, आपने निकालनी है आपकी उर्दू की किताब, ये आपको नज़र आ रही है ना गुले लाला, ये आपने अपनी किताब निकालनी है। किताब का सफ़ा नंबर आपने निकालना है 2, सफ़ा नंबर 2 ये मैं निकालने लगी हूँ, ये सामने देखें, सफ़ा नंबर 2, खुदा की शुक्र गुजारी। अब आपने क्या करना है, आपने जो अभी मुश्किल अल्फाज किए हैं, लिखे हैं अपनी कॉपी पे, वो आपने इस सारी जो हम्द है खुदा की शुक्रगुजारी, इसमें से आपने वो सारे अल्फाज तलाश करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको मुश्किल अल्फाज अभी फ्लैश कार्ड्स पे और कॉपी पे दिखाए लिखवाए, वो आपने अब इस सारी हम्द में से आपने वो ढूंढने हैं, तलाश करने हैं। उनको तलाश करने के बाद आपने क्या करना है कि उनके नीचे ख़त कशीद कर देना है। ऐसे वो लफ्ज़ अगर आपको मिल जाता है जो भी मुश्किल अल्फाज का था, तो उसके नीचे आपने एक लाइन लगा देनी है, उसको ख़त कशीद कर देना है। ये है आज का आपका काम। उम्मीद है आपको आज का जो सबक है वो समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मैं आपको हम्द खुदा की शुक्रगुजारी की मैं बुलंद ख़्वानी करूँगी और इसके तमाम अशार का मफ़हूम आपको बताऊँगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।